آپ ہیں صرف اپنے مطلب کے، 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 آپ کو جان کر کے دیکھ لیا، آپ کو جان کر کے دیکھ لیا، اپنا نقصان کر کے دیکھ لیا۔ آئیے اسی مزاج کی شاعری کرنے والا ایک شاعر ہمارے بیچ موجود ہے جو درد دوائے دل بھی بانٹتے ہیں اور اشعار کے ذریعے ذوق کی تذکیر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محفوظ حسن بہار صاحب۔ دل پتھر کا اپنا بناؤں ایسا کیسے ہو سکتا، دل پتھر کا اپنا بناؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم روٹھو اور میں نہ مناؤں کیسے ہو سکتا ہے، دل پتھر کا اپنا بناؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم روٹھو اور میں نہ مناؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ وقت نہیں، اور کوئی ہوتا تو شاید کہ وقت نہیں، آپ بلائیں میں اور کوئی ہوتا تو شاید، اور کوئی ہوتا تو شاید پتھر کا اپنا بناؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم لوٹو اور میں نہ مناؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ وقت نہیں، اور کوئی ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ وقت نہیں، آپ بلائیں میں آندھی میں یہ گرا نہ دے، آندھی میں یہ گرا نہ دے چھپر بڑے بڑے، آندھی میں یہ گرا نہ دے چھپر بڑے بڑے، سایہ کیے ہیں پیڑ جو سر پر بڑے بڑے، تو اسلام کی توہین جب حد سے گزر گئی، اسلام کی توہین جب حد سے گزر گئی، رب نے ڈبو دیے کئی لشکر بڑے بڑے، رب نے ڈبو لشکر بڑے بڑے، خدا نہ دے سب پر بڑے بڑے، سایہ کیے ہیں پیڑ جو سر پر بڑے بڑے، اور اسلام کی توہین جب حد سے گزر گئی، رب نے ڈبو دیے کئی لشکر بڑے بڑے۔ خوشبو کے ساتھ پھول کی رنگت بھی گر گئی، خوشبو کے ساتھ پھول کی رنگت بھی گر گئی، جب سے وطن میں آ گئے رہبر بڑے بڑے، خوشبو کے ساتھ پھول کی رنگت بھی گر گئی، جب سے وطن میں آ گئے رہبر بڑے بڑے، اور ان کی سفید پوشی پہ ہرگز نہ جائی، ان کی سفید پوشی پہ ہرگز نہ جائیے، پکڑے گئے ہیں نیتا بھی اکثر بڑے بڑے، خوشبو کے ساتھ پھول کی رنگت بھی گر گئی، جب سے وطن میں آ گئے رہبر بڑے بڑے، ان کی سفید پوشی پہ ہرگز نہ جائیے، ان کی سفید پوشی پہ ہرگز نہ جائیے، پکڑے گئے ہیں نیتا بھی اکثر بڑے بڑے، اور مقدم مارنے والے بھی ایمان کی گٹھی میں چھپے ہیں بہار اب، ایمان کی گٹھی میں چھپے ہیں بہار اب، شیطان کے لباس میں اجگر بڑے بڑے، شیطان کے لباس میں اجگر بڑے بڑے، آیا کیے ہیں پیڑ سر سے بڑے بڑے۔ تو میں چودھری عبدالرحمان صاحب وہ خراج عقیدت کے طور پر ایک شعر راجیش ریڈی کا ہے اسی سلسلے کا، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور موقع بھی ہے چودھری صاحب کو یاد کرنے کا کہ کیوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا، کیوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا،
लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और जैसे गलत पते से चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते में चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर से दर पे रुका और उतर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और मैं ही सबब था आपके अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था आपके भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम आपकी बार भी किस्मत के सर गया। ये तो था राजेश रेड्डी का शेर जो मुझे पसंद था, इसलिए मैंने आप लोग को दान कर दिया। कलीम रेड्डी का शेर सुनिए। हाँ, कि उसको आना था, ना आएगा ना आए लेकिन, उसको आना था ना आएगा ना आए लेकिन, उसकी यादों से कहो मुझको मनाने आए, यादों से कहो मुझको मनाने आए। और आंख रूठी है, डॉक्टर सुनिएगा कि आंख रूठी है, आंख पागल थी, उसे ख्वाब में पाना चाहा, आंख पागल थी, उसे ख्वाब में पाना चाहा, और नींद उठी है तो अब होश निकाले, उठी है तो अब होश निकाले। कविता मैंने पिछले साल लिखी थी, नए साल की खुशी में, वो मैगजीन में दिल्ली की इत्तेफाक की छवि में लिखी थी, लंदन कॉलेज के। तो मैं चाह रहा था कि वही सुना के और आप लोगों से इजाजत दूं। और नए साल के उसमें जो है वो थोड़ा सा आसान लफ्जों में उसमें कह लीजिए या हिंदी की जो भी है। जनाब सर शगर भाई कि अब के बरस तुम ऐसा करना, इसका उन्वान है डॉक्टर साहब कि अब के बरस तुम ऐसा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना, और बिखरी यादें ताजा करना, और सादा सा एक कागज लेकर अपने सारे कल लिख लेना, सादा सा एक कागज लेकर अपने सारे कल लिख लेना, और सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी सुबह हाजिर करना, सारी शामें पास बुलाना, और इलावा इसके देखो सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक बात गुमान में रखना, फिर थोड़ा अंदाजा करना, घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। बहुत अच्छा है। घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। और अगर कम बढ़ जाए तो मत बेकार तकल्लुफ करना, देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियां तुम दे देना, मुझको अपने ये नमाजें, ये रियाजत कैसी, दिल में इखलास है तो इबादत कैसी, ये तहज्जुद, ये नमाजें, ये रियाजत कैसी, दिल में इखलास नहीं है तो इबादत कैसी। और शेर की पाओगे कैसे भला मेहर वफा की खुशबू, पाओगे कैसे भला मेहर वफा की खुशबू, छोड़ दी राह मोहब्बत तो मोहब्बत कैसी, छोड़ दी राह मोहब्बत। और शेर हजरात की दिल का दरवाजा जब वो रोज खुला रखता हूँ, दिल का दरवाजा जब वो रोज खुला रखता हूँ, आ गए हो तो चले आओ, आ गए हो तो चले आओ, इजाजत कैसी, दिल का दरवाजा जब वो रोज खुला रखता हूँ, आ गए हो तो चले आओ, इजाजत कैसी। और शेर हजरात की तेरी दहलीज पे अक्सर मैं सजा देता हूँ, तेरी दहलीज पे अक्सर मैं सजा देता हूँ, तो सुने या न सुने इस पे शिकायत कैसी, सुने या न सुने इस
कि शायर और शेर देखे हैं हजरात की कोई दीवाना किसी राह से गुजरा होगा, कोई दीवाना किसी राह से, कोई दीवाना किसी राह से गुजरा होगा, वरना ये लाल सहराई में नकहत कैसी, वरना ये लाल सहराई में नकहत कैसी, कोई दीवाना किसी राह से गुजरा होगा, वरना ये लाल सहराई में नकहत कैसी। और शेर देखा हजरात की दिल के बाजार का मेयार बढ़ाने के लिए, फिर बैठा है दिल के बाजार का मेयार बढ़ाने के लिए जान देनी है अगर तुझको तो कीमत कैसी, जान देनी है अगर तुझको तो कीमत कैसी। और आखिरी से देखा था कि अपने मजलूम के हक में जो गवाही, हमने मजलूम के हक में जो गवाही दी है अगर पाँव में जंजीर तो हैरत है, अगर पाँव में जंजीर तो हैरत कैसी, हमने मजलूम के हक में जो गवाही दी है अगर पाँव में जंजीर तो हैरत कैसी। और हमसे का शरदात की साफ कहता हूँ लगावट नहीं थोड़ी भी मजाज, साफ कहता हूँ लगावट नहीं थोड़ी भी मजाज, ये लिबास तेरा जौहर है तो इज्जत कैसी, ये लिबास तेरा जौहर है तो इज्जत कैसी। हमने मजलूम के हक में जो गवाही दी है अगर पाँव में जंजीर तो हैरत कैसी। मतलब मुलाजा फरमाइएगा। तेरा अरमान करके देख लिया, 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 अपना नुकसान करके देख लिया, अपना नुकसान करके देख लिया। और शेर मुलाजा फरमाए कि तू भी कछुए से कम नहीं निकला, तू भी कछुए से कम नहीं निकला, तू भी कछुए, तू भी, माफ कीजिएगा वो, हाँ वो बिच्छू था क्योंकि ताजा कलाम इस वजह से। तू भी बिच्छू से कम नहीं निकला, तू भी बिच्छू से कम नहीं निकला, तू भी बिच्छू से कम नहीं निकला, तुझ पे एहसान करके देख लिया, तुझ पे एहसान करके देख लिया। बंद खिड़की से झांकने के लिए, बंद खिड़की से झांकने के लिए, आँख को कान करके देख लिया, आँख को कान करके देख लिया, तेरा अरमान करके देख लिया, अपना नुकसान करके देख लिया। शुक्रिया। इज्जत माब डॉक्टर फैजान साहब, जनाब शमीम शहजाद साहब, मौजूद हाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है कि हाजी साहब के को याद करने के लिए उनके साहबजादे अरशद जमाल समानी साहब हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। और वो ऐसी शख्सियत है हाजी अब्दुल रहमान साहब कि वो सोशल वर्कर रहते हुए साथ में वो हमेशा गोरखपुर की तरक्की के लिए वो काम करते थे, चाहे वो चेयरमैन डॉक्टर लहरी साहब हों, चाहे शंभू शरण सिंह साहब हों, और चाहे फिर जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो वो जो है गोरखपुर के लोग चाहते थे कैसे इसको मास्टर प्लान बनाया जाए कि शहर को आगे बढ़ाया जाए। वीर बहादुर सिंह जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उनसे उनके अच्छे बड़े ताल्लुकात थे। हमारे ग्रैंडफादर शेख हसन अली साहब भी म्यूनसिपल कमिश्नर थे, रियासत हुसैन साहब म्यूनसिपल कमिश्नर थे,
ये लोगों ने जो नेतागिरी की, जो नेता लोग होते थे, उनको अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने जिले से, अपने शहर से मोहब्बत हुआ करती थी। लेकिन आज का जो नेता होता है वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करता है तो सोचता है कि 25 करोड़ कैसे कमाया जाए। ये लोग अपने घर से देते थे। पिपरापुर में डॉक्टर मोहसिन साहब थे, अरे मोहसिन साहब थे, उनके साहबजादे आल अहमद सरवर साहब जो डिप्टी मेयर हुआ करते थे, वो भी इस तरह के आदमी थे। उन्होंने इसके साथ साथ एजुकेशन को उन्होंने काफी शौक दिया रहमान साहब ने। वो हमेशा इस्लामिया कॉलेज, अंजुमन अंजुमन इस्लामिया और इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज के जो है हमेशा वो सेक्रेटरी मेंबर रहा करते थे। आज उनकी खुशी है कि इस तालीम की वजह से आज उनकी एक पोती जो है आईपीएस है। तालीम दिया उन्होंने, उनके माँ बापों ने तालीम दिया। इसी तरह से हमारे अरशद साहब भी तालीम पे ज्यादा रुजू रहते हैं और चाहते हैं कि कौम आगे बढ़े। आज हमको बड़ी खुशी की बात है कि जो मदरसा एक्ट बना था, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने मदरसे को खत्म करने के लिए जो उन्होंने पेशकश की थी और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको पास कर दिया था कि ये जो है मदरसा अब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको फैसला किया कि जो मदरसे जो यूपी में हैं उसको जो है वैसे कायम रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलाम पाक दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये रहने पर हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उसी के मदरसे का तालिब इल्म रह चुका हूँ, मैं वहां से इंजीनियरिंग किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उनका भी यही था कि मुसलमानों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जाए जिससे वो आगे बढ़े। उस पर काफी फतवे भी आए लोगों से कि ये तो अंग्रेज बनाना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लड़के छाए हुए हैं। और 17 अक्टूबर को उनकी पैदाइश 1817 को हुई और उन्होंने ये रखा कि साहब हम तालीम लोगों को, जब अपने मुसलमान भाइयों का ये हालत था कि जमींदार थे, तालुकदार थे, नवाब थे, नवाबीन थे, वो कहते थे पढ़ाई किस लिए करे, कोई मुझको नौकरी करना है, बस इसकी वजह से वो पढ़ाते नहीं थे। हमें याद है कि जब भी कोई बड़ा रईस आदमी का लड़का कोई पढ़ने जाता था तो लोग कहते थे ए मुंशी जी जाके उसका दाखिला करा दो, और हमेशा जुलाई ही उसका जो है डेट ऑफ बर्थ हुआ करता था। वो पढ़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज सर सैयद साहब की वजह से ये है कि मुसलमान चाहे गोरखपुर में देख लीजिए डॉक्टर अजीज साहब हों, चाहे और भी दीगर सब तमाम डॉक्टर्स हैं, वो अलीगढ़ की देन है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अरशद जमाल सामानी साहब इसके साथ साथ जो है तालीम पर भी जोर दें। और उसके ये गए थे वो सर सैयद साहब जो है मिर्जा गालिब साहब के पास की कोई शेर और शायरी करिए जो है जो फलां के नाम पर, तो उन्होंने कहा यार मरे हुए आदमी का करोगे कि जिंदा का कोई काम करना है तुमको। तब उनको ख्याल आया कि गालिब साहब तो बहुत सही बात कर रहे हैं। उस पर उन्होंने जो है एक मदरसा खोला, 4 बच्चे उसमें थे जिसमें गोरखपुर के एक साहबजादे आप ही के रिश्तेदार होंगे एहसानुल्लाह अब्बासी साहब। एहसानुल्लाह अब्बासी साहब वो मदरसे के तालिब थे और आज वो मदरसा होते होते वो एमएओ कॉलेज बना, एमएओ कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी बन गई। आप लोग दुआ करिए कि अभी बिल जो पास हुआ है माइनॉरिटी एक्ट का, वो हम लोग का जैसे मदरसे का पास हुआ वो भी पास हो जाए तो हम समझते हैं कि अब जो मुसलमान बच्चे, वो बहुत बड़ा काम दुनिया में होगा, बहुत बड़ा काम होगा। ये सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और ये कहता हूँ कि अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अब भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी मोअज़्ज़ज़ सामीन, कल मुझे असद भाई का नादिर शाही हुक्म मिला कि कुछ हमारे वालिद के बारे में कुछ जरूर लिखिए। और मैंने जो है 19 अब्दुर्रहमान साहब के बारे में कुछ कहा है। 1920 के किसी महीने में मोहम्मद शफी सामानी मरहूम के वहाँ एक बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोली और उसे अपनी माँ की शफकत भरी गोद में अपने हाथ पैर डुलाए और एक लंबी सी कहाँ की आवाज़ निकाली। घर वालों की राहत मिली और वो कहाँ कहाँ की आवाज़ आगे आने वाले दिनों में दूर तक फैली। वालिदैन उस बच्चे का नाम अब्दुर्रहमान रखा। आगे चलकर वो नौज़ायदा बच्चा इसमें बामुसम्मा साबित हुआ, जिसके अंदर अज़्म, कनाअत, सब्र और आगे बढ़ने का हौसला था और उस हौसले के सारे दीनी, मजहबी, सियासी हर गोशे में अपनी जगह बनाई। गोरखपुर वैसे तो उनके ज़माने में एक छोटा सा कस्बाती शहर था, मगर उन्होंने उस वक्त के तमाम मजहबी अदारों, अंजुमनों में अपनी शनाख्त बना ली और मरते दम तक उसे वो मुंसलिक रहे। जैसा कि मुझे उनके बेटे मोहतरम अरशद जमाल साहब ने बताया,
उन्होंने मुल्की नहज पर भी अपनी शनाख्त के साथ सामानी फेडरेशन की बुनियाद रखी, अपने कौम के नौनहालों को आगे बढ़ने में कोशाग हो गए। आज उनकी औलादें माशाल्लाह तजारत में बड़ा नाम रखती हैं, सिविल सर्विसेज, एजुकेशन और दूसरे प्रोफेशनल कामों में बहुत आगे हैं। उनके ख़ानदान का एक बड़ा हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। उस रहमान साहब मरहूम जिंदगी का चिराग 3 जुलाई 1996 में गुल हो गया। आसमां उनके लहर पे शबनम अफसानी करे। आज हम उन्हीं की याद में अब्दुर्रहमान मेमोरियल सोसाइटी की जिंदगी अरशद जमाल साहब की फरमाइश पर उनकी यादें जिंदा करने के लिए मौजूद हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है किस तंजीम के तहत हो रहा है, उस तंजीम के बारे में बताएं, और तंजीम किसके नाम से है उनके बारे में बताएं। आज का प्रोग्राम जो है चौधरी अब्दुल रहमान मेमोरियल सोसाइटी खूनीपुर, जो खूनीपुर गोरखपुर के जानिब से किया गया है। और ये तकरीबन हम समझ रहे हैं कि काफ़ी जो है 40 साल से जो है ये इदारा जो है अपना शेरी नसीहत तदबीर प्रोग्राम और सामाजिक कामों में जो है करता चला आ रहा है। हमारे ख़ानदान में हमारे परदादा वगैरह वलायत गोरखपुरी जो है वो भी शायर थे। 100 साल से जो है ये रवायत जो है नशिस्तों की और महफिलों की चली आ रही है। हमारी सदारत में दायरे अदब गोरखपुर के भी जो है नशिस्तें हुई हैं, जिसमें 40 शोहरा ने जो है ये उसमें शामिल हुए हैं। और हम 12 साल तक जो है दायरे के सदर भी रहे हैं, दायरे अदब गोरखपुर के। और इसी से वो सिलसिला चला आ रहा है। हमारे वालिद साहब जो है मुख्तलिफ इदारों में इमामबाड़ा गर्ल्स कॉलेज के वो सेक्रेटरी थे, अंजुमन इस्लामिया के सदर थे, म्यूनिसिपल बोर्ड में चेयरमैन रहे हैं। वो तालीमी इदारों से और सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के नक्श कदम पर जो है उनकी याद में ये इदारा जो है चल रहा है। और आज जो है ये नशिस्त रखी गई है हमारे में, जिसमें सारे हमारे शहर के शोहरा हजरात जो है नसीम समीम शहजाद साहब की सदारत में ये किया गया है। मेहमान खुसूसी हमारे इंजीनियर शमसनवर साहब थे, निजामत कर रहे हैं हमारे फरूक जमाल साहब।